اور بیٹے نے روح القدس کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ ایمانداروں کے اندر سکونت کر سکے اور ان کی رہنمائی کر سکے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ روح القدس کیوں زمین پر آیا، روح القدس کی نزولیت کیوں ہوئی ہے؟ تو میں آپ کے سامنے گوشگزار کرنا چاہتا ہوں کہ خدا باپ نے اور بیٹے نے روح القدس کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ ایمانداروں کے اندر سکونت کرے اور ان کی رہنمائی کرے۔ بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم روح القدس پر ایمان رکھتے ہیں، جبکہ در حقیقت وہ صرف خدا باپ اور خدا بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں اور روح القدس کو محض ایک خادم ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ بات غلط ہے، کیونکہ روح القدس دوسرے ہر دو اقانیم کے برابر ہے اور کسی بھی طرح سے کسی سے کم نہیں ہے۔ کئی لوگ روح القدس کو بجلی جیسی بے جان قوت قرار دے کر اس کا مرتبہ جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک روح القدس جو ہے وہ ایک ایسی طاقت ہے، ایسی قوت ہے جس میں طاقت پائی جاتی ہے، لیکن وہ اس کو زندہ ہستی قرار نہیں دیتے ہیں۔ بعض لوگ روح القدس کو زندہ ہستی قرار نہیں دیتے ہیں، لیکن آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ روح القدس ایک زندہ ہستی ہے، کیونکہ ہم اس سے مخاطب ہو سکتے ہیں یا اس سے دور رہ سکتے ہیں، اس پر اعتماد یا شک کر سکتے ہیں، اس سے محبت یا نفرت کر سکتے ہیں، اس کی تعریف یا اس کی بے عزتی بھی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ بہت سارے لوگ کا لفظ یوز کیا تو بہت سارے لوگ روح القدس کی تضحیق کرتے ہیں، اس کو ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں اور اس کے بارے میں غلط بیانات بھی دیتے ہیں۔ تو جب ہم کسی کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں تو در حقیقت ہم اس کی عزت نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ تو کوئی ہو تو اس کی بے عزتی ہوتی ہے نا، کوئی ہو تو اس کی عزت ہوتی ہے۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے روح القدس کی شخصیت، کیونکہ یہ روح القدس بطور ایک ہوا کا جھونکا نہیں ہے، وہ ایک بجلی نہیں ہے، وہ کوئی بے جان چیز نہیں ہے، بلکہ وہ ایک شخصیت ہے۔ وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کا وجود نہ ہو، بلکہ وہ وجود رکھتا ہے اور وہ شخصیت ہے، اس کا ایک کردار ہے۔ ہاللیلویا۔ آج میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا اس کے تعلق سے۔ آپ پہلا پوائنٹ لکھ سکتے ہیں کہ روح القدس ایک شخص ہے کیونکہ وہ شخصی خصوصیات رکھتا ہے۔ ٹاپک کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ روح القدس ایک شخص ہے کیونکہ وہ شخصی خصوصیات رکھتا ہے۔ آئے ہم باخور کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے روح القدس ایک شخص ہے اور وہ شخصی خصوصیات رکھتا ہے۔ اگر ہم پہلا قرنتھیوں کا 12واں باب اس کی 11ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ایک پوائنٹ ملتا ہے کہ روح القدس قوت ارادی رکھتا ہے۔ فرسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ آپ جو ہیڈنگ پہلا پوائنٹ لکھا اور اس کی پہلی آپ ایک فرسٹ پوائنٹ لکھتا ہے کہ قوت ارادی۔ روح القدس کیا ہے؟ قوت ارادی رکھتا ہے۔ اب پہلا قرنتھیوں کا 12واں باب اس کی 11ویں آیت میں یوں لکھا ہے، لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ یعنی کہ روح القدس جو ہے وہ قوت رکھتا ہے، وہ قوت ارادی رکھتا ہے، وہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے اور یہ سب تفسیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو وہ بانٹتا ہے۔ یعنی اس کے اندر قوت ہے، فیصلہ کرنے کی قوت ہے، طاقت ہے، وہ پاور رکھتا ہے، وہ اتھارٹی رکھتا ہے اور اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ کیونکہ جس طرح خدا باپ خدا ہے، خدا بیٹا خدا ہے، اسی طرح روح القدس بھی خدا ہے۔ اسی طرح روح القدس بھی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تین خداؤں کو مانتے ہیں، ہم تین خداؤں کو نہیں مانتے ہیں، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں جو وحدانیت میں کثرت رکھتا ہے، جو توحید جو توحید
23 है, जो एक में 3 है और 3 में 1 है। तो इसी तरह हम 3 खुदाओं को नहीं मानते हैं, हम सलूस की प्रस्तिश नहीं करते हैं, बल्कि खुदाए सलूस की प्रस्तिश करते हैं। हम सलूस की प्रस्तिश नहीं करते हैं, बल्कि खुदाए सलूस की प्रस्तिश करते हैं, जो 3 में 1 है और 1 में 3 है। हालेलुया। जब आप उसको इस तरह देखेंगे तो आपको कितना नजर आएगा? आपको 1 नजर आएगा, लेकिन जब आप उसको इस तरह देखेंगे तो आपको 3 नजर आएगा। इसलिए वो 1 में 3 और 3 में 1 है। हालेलुया। तो आज हम खुदा रूह कुद्स के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम उसकी खुसूसियात और उसकी शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट, वो कुत्ते इरादी रखता है। दूसरा पॉइंट, वो फहम रखता है। नहमिया नबी का सहीफा उसका 9वां बाब उसकी 20वीं आयत का मुतालिया करते हैं तो वहां पर यूं लिखा है, और तूने अपनी नेक रूह भी उनकी तरबियत के लिए बख्शी। असल या कुव्वत में इल्म नहीं होता, वो किसी तरबियत के लिए नहीं बल्कि खुदा की रूह है। हालेलुया। और इसी तरह हम रोमियो उसका 8 बाब उसकी 27वीं आयत का मुतालिया करते हैं तो वहां पर यूं लिखा है कि दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुवाफिक मुकद्दसों की शफायत करता है, वो परखता है और जानने की सलाहियत रखता है। हालेलुया। अब क्या है? रूह कुद्स जो है फहम रखता है, यानी कि वो सूझबूझ रखता है, वो अंडरस्टैंडिंग रखता है, वो दिलों का परखने वाला है, वो जानता है, वो समझ रखता है कि रूह की क्या नीयत है, क्या, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुवाफिक मुकद्दसों की शफायत करता है। आगे लिखा है वो परखता है। वो क्या है? अब परखेगा वही जो वजूद रखता है, परखेगा वही जिसकी शख्सियत होगी, परखेगा वही जिसका कोई किरदार होगा। अब कोई हवा का झोंका या रूह तो कुछ नहीं ना कर सकती। अंडरस्टैंड करें? तो रूह कुद्स एक बतौर एक शख्सियत है, किरदार का नाम है। वो एक ऐसी जात है जो वजूद रखती है, जो एग्जिस्ट करती है। हालेलुया। हालेलुया। अब आगे कितने पॉइंट हो गए जी? कितने पॉइंट में? 2 पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट, अब रूह कुद्स इल्म रखता है। रूह कुद्स क्या है? जोर से बोले, रूह कुद्स क्या है? अब पहला कुरानियों उसका 2 बाब और उसकी पहली 10वीं और 12वीं आयत का जब मुतालिया करते हैं तो वहां पर यूं लिखा है कि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातों को जानता है? क्या हम एक दूसरे के अंदर की बातों को जानते हैं? ये खुदा जानता है। हम ये नहीं कह सकते कि आपके अंदर क्या चल रहा है और मेरे अंदर क्या चल रहा है। ये सिर्फ कौन जानता है? पाक जानता है। इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातों को जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। सिवा इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा की रूह के सिवा कोई खुदा की बातों को नहीं जानता। रूह कुद्स के पास इल्म है और वो बातों को जानता है। रूह कुद्स के पास क्या है? अब क्या है? वो इल्म रखता है और वो अंदर की बातों को भी जान लेता है। इंसान के अंदर क्या चल रहा है, ये क्या आगे जाके करेगा और इसका मकसद क्या है कुछ करने का, क्योंकि जो यहाँ पर बैठा अंडरस्टैंड करेगा ये काम क्या है, वो रूह कुद्स करेगा। और जो शख्सियत रखता है वही इल्म रखता है। जो शख्सियत रखता है, जिसका वजूद है और जो वजूद रखता है, जो एग्जिस्ट करता है, वही इल्म रखता है। और रूह कुद्स इल्म भी रखता है। हालेलुया। इल्म का मतलब होता है जानना, और वो जानता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। हालेलुया। अब आगे जब बढ़ते हैं तो चौथा पॉइंट है, रूह कुद्स कुदरत रखता है। रूह कुद्स क्या है? कुदरत रखता है। अब आज उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत का जब मुतालिया करते हैं तो वहां पर लिखा है, जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा, जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। और रूह कुद्स ने बड़ी कुदरत से पतरस को तब्दील कर दिया। अब जब
जमात होती है और ये पेंटिकोस्ट का दिन होता है, तो क्या होता है, रूह कुद्स क्या है, वो नाजिल होता है 100 लोग 120 लोगों की जमात में, और लोग तरह तरह की जुबान में बोलना शुरू हो जाते हैं, और पाक रूह की नज़ूरियत जब उसकी जिंदगी में आती है, पतरस की यानी सबकी जिंदगी में आती है, और जब पाक रूह की कुदरत रूह कुद्स के वसीला से पतरस के अंदर आती है, तो वो जो कमजोर आदमी होता है, वो जो डरपोक आदमी होता है, वो बाहर निकलता है कमरे से और खुदा के कलाम को शेयर करना शुरू करता है, और जब वो खुदा के कलाम की बातों को शेयर करता है, तो 3000 लोग खुदा के कलाम पर ईमान लाते हैं, और ये उसकी अपनी ताकत से नहीं बल्कि रूह कुद्स की कुदरत से जो ताकत उसके अंदर आती है, वो जब बोलता है तो नाउमीदी में उम्मीद पैदा हो जाती है, और खुदा की कुदरत उसके से बाहर होती है, और 3000 लोग जो है वो खुदा के कलाम पर ईमान ले आते हैं। ये उसकी अपनी ताकत या कुदरत से नहीं हुआ है, बल्कि रूह कुद्स की कुदरत से, सुपरनैचुरल पावर की अथॉरिटी से हुआ है। इसलिए रूह कुद्स क्या है, वो कुदरत रखता है, उसके अंदर कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। अब पांचवा जो पॉइंट है, रूह कुद्स मोहब्बत की सलाहियत रखता है। रूह कुद्स क्या है? अब मोहब्बत कौन रखता है? कोई हो तो वो किसी दूसरे से मोहब्बत रखता है, किसी का कोई वजूद हो तो वो किसी दूसरे वजूद वाले शख्स से क्या है, मोहब्बत कर सकता है, ऐसे तो कोई नहीं। अब रूह कुद्स जो है, जो खुदा बाप है, जो पाक तस्लीस का तीसरा कानून है, वो शख्सियत रखता है, और जो शख्सियत रखता है, जिसका किरदार हो, जो वजूद रखता है, जो अपने आप में एक जात रखता हो, वही दूसरी जात के साथ मोहब्बत रखने की सलाहियत रखता है। हालेलुया। अब रोमियो उसका 15वां बाब और उसकी 30वीं आयत का जब मुतालिया करते हैं, तो वहां पर लिखा है रूह की मोहब्बत को याद दिलाकर, क्या है, पलूस ये बात कर रहे हैं। जब इस आयत को पूरा पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। अब यानी कि रूह की मोहब्बत, यानी कि रूह के अंदर एक मोहब्बत है, वो मोहब्बत की सलाहियत रखता है, और हम सबसे प्यार और मोहब्बत भी करते हैं। हालेलुया। अगर वो प्यार ना करता होता तो हमारे साथ साथ क्यों रहता? अगर वो प्यार ना करता तो जब हम अकेले होते हैं, तो जब कोई आप एकदम से फील करेंगे कि ऐसी कुदरत आई है जिसने आपको सहारा दिया है, वो अगर किसी इंसान में से भी होकर आए, तो आपने ये नहीं समझना कि वो इंसान आया है, बल्कि खुदा पाक ने उसको भेजा है। हालेलुया। और जो आपको तसल्ली इत्मीनान दे रहा है, वो आपके साथ साथ है, वो कभी आपसे दस्तबरदार नहीं होता। हम उसका साथ छोड़ देते हैं, लेकिन वो हमारा साथ नहीं छोड़ता। अब आखिरी पॉइंट कौन सा है? कितने पॉइंट हो गए? अब छठा पॉइंट है कि रूह रंजीदा होने की सलाहियत भी रखता है। रंजीदा होना से मुराद क्या है? वो गमगीन होता है, वो गमगीन होता है, वो रंजीदा भी होता है। इफिसियों उसका 4वां बाब उसकी 20वीं आयत का जब मुतालिया करते हैं, तो वहां पे लिखा है, खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो। खुदा के पाक रूह को, अब क्या है, क्योंकि रूह को सोचता है, महसूस करता है, इरादा करता है, इल्म रखता है, ख्वाहिश करता है, मोहब्बत करता है और रंजीदा होता है, इसलिए वो एक शख्स है। हमें चाहिए कि ना उससे कतराए, ना उस पर शक करे, ना उससे नफरत करे और ना उसकी बेइज्जती करे, बल्कि हर वक्त ईमान, मोहब्बत और हमदोस्ताइश के साथ हम उसके पास आए और उसकी प्रस्तुत करें। जिस तरह खुदा बाप की प्रस्तुत करना सेवा देती है, खुदा बेटे की प्रस्तुत करना सेवा देती है, इसी तरह पाक तस्लीस के तीसरे अखलूक रूह कुद्स की प्रस्तुत करना भी रास्तबाजों को सेवा देते हैं। इसको महज हवा का झोंका मत समझे, एक आग के तौर पर मत देखे। रूह कुद्स एक शख्सियत है, एक किरदार का नाम है, एक जात है, उसका एक वजूद है और उसका एक कैरेक्टर है जो हमारे साथ साथ है। और बाइबल मुकद्दस में खुदा यीशु मसीह जब सऊद फरमा रहे थे, तो उनके जो आखिरी स्टेटमेंट थी वो अपने हवारियों से ये कहते हैं, और हम सबसे भी ये कहा उन्होंने बाइबल मुकद्दस के जरिए से, कि मैं तुम्हें अकेला और यतीम ना छोड़ूंगा। मैं तुम्हें अकेला और यतीम ना छोड़ूंगा, बल्कि अपनी ही मालिक, बल्कि
बोले जरा, बल्कि एक दूसरा मददगार तुम्हारे लिए भेजूंगा जो अब तक यानी हमेशा तक, अबदियत तक, आखिर तक आपके साथ रहेगा। आपके अब जब वो आपके साथ है, इट्स मीन हमारे साथ है, तो हमें भी चाहिए कि उसकी जात पर हम ईमान ले आए और उसकी ताकत को अपनी जिंदगी पर मांगे, उसकी ब्लेसिंग को अपनी जिंदगी पर मांगे, तो वो आपके साथ है। जब आप उसको इग्नोर करते हैं तो वो रंजीदा होता है, वो गमगीन होता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वहाँ ये भर भर कर हमारे लिए शफायत करता है खुदा पाक। वो हमारे लिए बहुत कुछ करता है। पुराने अहदनामे का जब मुताला करते हैं तो तब भी किसी खास मकसद के लिए खुदा बाप ज़मीन पर भेजता था, और जब वो इंसान की जिंदगी पर आता था नबियों के कमरों पर, और जैसे ही वो पैगाम होता था, वो नबी होता था, वो क्या करता है था, वो बोल देता था और उसकी जिंदगी से आकर और उससे वापस चला जाता था। लेकिन अब जब नए अहदनामे में देखते हैं तो रूह उसके बारे में खुदा यीशु ने कहा है कि वो जाएगा नहीं, बल्कि अब तक तुम्हारे साथ। आप जब अपनी फैमिली के साथ बाहर जाते हैं तब भी रूह आपके साथ, जब आप जॉब पर जाते हैं तब भी रूह आपके साथ, जब अपने आप घर में होते हैं तब भी रूह आपके साथ होता है, जब आप मुश्किलात में होते हैं तब भी रूह आपके साथ होता है, जब आप कहीं भी जाते हैं, किसी भी वक्त आप जो कुछ भी कर रहे होते हैं, रूह आपके साथ होता है। लेकिन होता किनके साथ है? जो ईमानदार है। होता किनके साथ है? जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया हुआ है, जिन्होंने पानी का बैप्टिज्म किया है, जिनकी जिंदगी में रूह का बैप्टिज्म जो है वो भी ज़ाहिर होता है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जिन्होंने नई पैदाइश का तजर्बा हासिल किया है और जो हमेशा वफादारी के साथ खुदा के साथ चलते हैं, रूह के साथ साथ होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी हमने देखा कि रूह एक शख्स है, क्योंकि वो शख्सी खसूसियात, हालेलुया। आए हम एक और चीज का मुताबिक करते हैं। रूह जो है, रूह वो काम करता है जो सिर्फ एक शख्स ही कर सकता है। दूसरा पॉइंट है, रूह वो काम करता है जो सिर्फ कोई शख्स या एक शख्स ही कर सकता है। ये आपने हैडिंग की है, और इसका पहला पॉइंट यह है, रूह खुदा के तह की बातें दरियाफ्त कर लेता है। रूह क्या है? अब खुदा के अंदर क्या चल रहा है ये खुदा ही जानता है, इंसान नहीं जान सकता है। इंसान की इतनी औकात ही नहीं है, इतनी बसात ही नहीं है कि वो खुदा के दिलों की बातों को जान सके। खुदा के दिल की, अब खुदा के दिल की बातें खुदा ही जान सकता है। खुदा के दिल की बातें, और रूह बतौर खुदा है, इसलिए वो खुदा के दिल की बातें जानता है। रूह खुदा है, इसलिए वो खुदा के दिल की। इसका मतलब ये नहीं मैंने कहा दो खुदा है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं जानेगा। वो तीन में एक और एक में तीन है, इस बात को समझना है। सारी जिंदगी गुजर जाती है, हम नहीं समझ पाते कि रूह भी बाप है, खुदा बाप भी बाप है, और जो मतलब क्या है, खुदा यूसुफ भी बेटा है। बहुत सारे लोग उसको बाप भी कह देते हैं, और इसमें कोई मुजाहिदा भी नहीं, क्योंकि वो क्रिएशन का काम करता है। लेकिन खुदा यूसुफ को बाप नहीं कहना चाहिए, वो बेटा है। हालेलुया। लेकिन अगर हम खुदा बाप को बाप ही कहें तो वो ज्यादा बैलेंस है। हालेलुया। रूह भी खुदा है, और खुदा बाप भी खुदा है, और खुदा बेटा भी खुदा है। हालेलुया। अब पहला पॉइंट क्या है? रूह खुदा की तह की बातें दरियाफ्त कर लेता है। पहला कुरिन्थियों का दूसरा बाब उसकी पहली आयत का जब मुताला करते हैं
تو وہاں پر یوں لکھا ہے روح سب باتیں بلکہ خدا کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے. حوالہ نوٹ کر لیجیے تاکہ جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ کو پتہ چل جائے کہاں سے لی ہے. پہلا قرنتھیوں اس کا دوسرا باب اس کی پہلی آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر باشگاف الفاظوں میں یوں لکھا ہے روح سب باتیں بلکہ خدا کی تہ کی باتیں بھی. وہ سب باتیں تو دریافت کر ہی لیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا کے تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے. آج کل کا اعلیٰ سے اعلیٰ کمپیوٹر بھی ایسا نہیں کر سکتا ہے لیکن روح درست کر سکتا ہے. ٹیکنالوجی جتنی مرضی بڑھ گئی ہے, ریسورسز کسی کے پاس جتنے مرضی زیادہ ہے, دولت شہرت جس کے پاس جتنی مرضی زیادہ ہے, لیکن اس کی ٹیکنالوجی, اس کی دولت, اس کی شہرت ختم ہو جائے گی لیکن روح اس کی طاقت اور قدرت اس سے زیادہ بڑھ کر رہے گی. کیونکہ کمپیوٹر جتنا مرضی جدید ہو جائے بنایا تو کسی انسان ہے, اور انسان جتنا مرضی طاقتور ہو جائے اس کو بنایا تو خدا کی قدرت ہے. اس لیے خدا کی باتوں تہ کی باتوں کو کوئی نہیں جان سکتا ہے سوائے روح القدس, سوائے. اب جب دوسرا پوائنٹ اس کا لیتے ہیں تو روح القدس کلام کرتا ہے. روح القدس کیا کرتا ہے؟ روح القدس کیا کرتا ہے؟ مکاشفہ اس کا دوسرا باب اس کی 7ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں اس میں یوں لکھا ہے جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیا سے کیا فرماتا ہے. جس کے کان وہ سنے کہ روح کیا ہے. یہ روح کس کی بات ہو رہی ہے؟ روح کلیسیا سے. اب وہ کلام کرتا ہے تو بتاتا ہے کیا فرماتا ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں. اب تیسرا پوائنٹ ہے روح القدس پکارتا ہے. روح القدس کیا ہے؟ یہ ساری باتیں میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں. پچھلے دنوں مجھے سوال آ گیا کہ کوئی شخص کہہ رہا تھا کہ روح القدس شخصیت نہیں رکھتا ہے, تو آپ کے پاس اتنا قائم ہو جائے گا کہ آپ ان کو حوالے دے دے کے بتا دیں گے کہ بائبل مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے, کسی اور کتاب کا ہم نہیں مانتے ہیں. بائبل میں یہ لکھا ہے کہ روح القدس یہ کرتا ہے, اور جب یہ کرتا ہے تو وہ شخصیت ہی کر رہی ہے نا, ویسے کوئی روح تو نہیں کر سکتی. اب روح القدس کیا ہے؟ وہ پکارتا ہے. غلطیوں چوتھا باب اس کی 6 آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح اپنے ہمارے دلوں میں بھیجا جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے. یعنی کہ ابا اے باپ کہہ کر, تو روح القدس کیا ہے؟ پکارتا ہے. یہ والا بھی کیا ہے. اب آگے کتنا پوائنٹ ہے؟ ذرا زور سے بولے, سبھی بولے کتنا پوائنٹ ہے؟ چوتھا پوائنٹ ہے روح القدس شفاعت کرتا ہے. روح القدس کیا ہے؟ شفاعت کرنا کیا ہوتا ہے؟ اور شفاعت کرنا کیا ہوتا ہے؟ اور کیا ہوتا ہے؟ کوئی اور بولے شفاعت کرنا کیا ہوتا ہے؟ اب کیا ہے, درخواست, اپیل یا التجام وہی کر سکتا ہے نا جو کسی کے لیے دکھ رکھتا ہو, اور دکھی وہی ہوگا جو ایک شخص ہوگا, ایک انسان ہوگا. آگ, پانی یا ہوا کا جھونکا کیسے دکھی ہو سکتے ہیں؟ یہ اس کے قدرت کے کام ہے کہ وہ کبھی آگ میں ظاہر ہوتا ہے, کبھی وہ پانی کی طرح ظاہر ہوتا ہے, یا کبھی وہ ہوا میں ظاہر ہوتا ہے. یہ اس کی سپر نیچرل پاور کے کام ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ ہوا روح القدس ہے یا آگ روح القدس ہے یا پانی روح القدس ہے تو یہ ذرا ایک غلط بات ہے. ہم اس کی تہذیب کریں, وہ ایک شخصیت ہے. روح القدس ایک کردار رکھتا ہے, جس طرح باپ اور بیٹے کا کردار ہے وہ شخصیت رکھتے ہیں, اسی طرح روح القدس بھی ایک شخص ہے, اس کی ایک ذات ہے, وہ وجود رکھتا ہے اور وہ ایگزسٹ کرتا ہے, بلکہ آج سے نہیں بلکہ ازل سے کرتا ہے. جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی روح القدس تھا, اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی روح القدس ہوگا. دیکھیں پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کی پہلی آیت کا تو لکھا ہے خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی. جب کچھ بھی نہیں تھا تو خدا کی روح یعنی روح القدس کیا تھا؟ پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا تھا. یہ آج کی بات نہیں کہ روح القدس سب آیا ہے 2000 صدی میں, 2020 سال پہلے, بلکہ وہ ازل سے ہے.
वो इब्तिदा की इब्तिदा और असल की असलियत से पहले मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। आए रूह कुछ के ताल्लुक से जोरदार अब रूह कुछ शफायत करता है। रोमियो उसका 8वां बाब और उसकी 26वीं आयत का जब मुतालिया करते हैं तो वहां पर यूं लिखा है, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता है। मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफायत करता है जिसका बयान नहीं हो सकता है। इसलिए रूह क्या है? हमारी शफायत करता है। आगे पॉइंट देखते हैं। रूह कुछ गवाही देता है। रूह कुछ क्या है? यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 15वां बाब और उसकी 26वीं आयत में यूं लिखा है, जब वो मददगार आएगा यानी रूह हक, वो मेरी गवाही देगा। वो मेरी, इसका मतलब है कि रूह कुछ क्या है? वो गवाही देता है। अब आगे पॉइंट में बढ़ते हैं तो लिखा है कि रूह कुछ तालीम देता है। रूह कुछ क्या है? यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 14वां बाब उसकी 26वीं आयत में लिखा है, लेकिन मददगार यानी रूह कुछ वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब बातें तुम्हें याद दिलाएगा। इसी लियाकत का जिक्र इंसान करता है। अब रूह कुछ क्या है? वो आपको तालीम दे रहा है, वो बातें सिखाएगा, और जब वो बातें सिखा रहा है तो इसका मतलब वो तालीम दे रहा है। तालीम दी जाती है और इल्म हासिल किया जाता है। उर्दू ग्रामर के मुताबिक क्या है? तालीम, हम कहते हैं कि हमने इल्म हासिल कर लिया है। इल्म हासिल नहीं किया जाता, पहले तालीम दी जाती है, फिर तालीम से इल्म हासिल होता है। डायरेक्ट काम नहीं होता। तो रूह क्या है? वो तालीम देता है। आगे बड़े पॉइंट से इसकी बात में कर दूंगा कि रूह कुछ रहनुमाई करता है, रूह कुछ हुक्म देता है, रूह कुछ इंसानों को बुलाता है और खिदमतें सुपुर्द करता है। इसी तरह बहुत सारी इसकी वजाहत है जो अभी टाइम नहीं है, मैं चाहूंगा नेक्स्ट मैं आपको बता दूं। अब अगला तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, हेडिंग लिखिए कि रूह कुछ जज्बात रखता है। रूह कुछ क्या है? ये मेन हेडिंग है, उसके पॉइंट से याद है, मैं किताब की तरफ बढ़ रहा हूँ। रूह कुछ क्या है? जज्बात रखता है, इमोशंस उसमें पाए जाते हैं। पहला पॉइंट, वो रंजीदा होता है, यसाया 23वां बाब की पहली आयत, लेकिन वो बागी हुए और उन्होंने रूह कुदस को गमगीन किया, यानी कि रंजीदा किया। दूसरा पॉइंट क्या है? उसकी बेइज्जती हो सकती है, उसकी बेइज्जती हो सकती है। इब्रानी उसका 10वां बाब और उसकी 29वीं आयत का जब मुतालिया करते हैं। और जब तीसरा पॉइंट है, उससे झूठ बोला जा सकता है। अमान उसका 5वां बाब उसकी 30वीं आयत, जब हननिया और सफीरा की आप बात कर सकते हैं, क्योंकि शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली कि तूने रूह से झूठ बोला। हननिया और सफीरा की बात कर रहे हैं। और चौथा पॉइंट, उसके खिलाफ कुफर बका जा सकता है। मत्ती उसकी बात को लिखा गया इंजीली बयान उसका 12वां बाब उसकी 31वीं आयत से 32वीं आयत का, मगर जो कुफर रूह के हक में हो वो माफ नहीं किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या पता चला कि रूह कुछ शख्सियत रखता है कि नहीं रखता है? कितने लोग आज से मानेंगे कि रूह कुछ शख्सियत रखता है? देखिए, जितनी इज्जत खुदा बाप की है, जितनी इज्जत खुदा बेटे की है, उतनी ही इज्जत रूह उस खुदा की है। हम तीन खुदाओं को नहीं मानते। बहुत सारे हमारे बहन भाई हैं जो गैर अक़वाम से ताल्लुक रखते हैं, वो हमसे कहते हैं कि आप तो तीन खुदाओं को मानते हैं। देखिए, हम हमेशा इन तीनों को ऐसे देखते हैं। हम इन तीनों को, अब ये आपको तीन फिंगर्स नजर आ रही है, ये एक नजर आ रही है। अब क्या है कि एक के पीछे दो छुपी हुई है, एक के पीछे छुपी हुई, लेकिन नजर आपको क्या आ रहा है? एक। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? हम इसको ऐसे देखते हैं, लेकिन लोग इनको ऐसे देखते हैं। लोग इनको, हमें वो एक में तीन नजर आता है और तीन में एक नजर आते हैं, लेकिन लोगों को वो तीन नजर आते हैं। अंडरस्टैंड करें? ये हमारा ईमान है, क्योंकि हम
ایسے خدا کی پرستش کرتے ہیں جو وحدانیت رکھتا ہے لیکن وحدانیت میں کثرت پائی جاتی ہے. وحدانیت میں ہم ایک میں تین اور تین میں ایک جو خدا ہے اس پر یقین رکھتے ہیں. ہم خدائے سلوس کی پرستش کرتے ہیں. دوبارہ پھر روح القدس ایک شخصیت کا نام ہے. روح القدس ایک کردار رکھتا ہے, ایک اس کا کردار ہے, کریکٹر ہے بائبل مقدس میں. اس کی اپنی ایک ذات ہے, وہ وجود رکھتا ہے. وہ ابتدا اور ازل کی ازلیت سے پہلے موجود رہتا. جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی وہ تھا, اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی وہ موجود ہوگا. ہاللیلویا. آئے زور کا تعریف خدا کی طرف.